हालेलुया। मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 10 ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਬੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 10 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਵਚਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ 10 ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ 10 ਤੋਂ 16 ਤੱਕ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਜੀ ਨੂੰ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਦਗੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੱਬੀ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਤ੍ਰੀਮਤ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਦਗੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਹਨੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸੱਚੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯਾਕੂਬ ਆਰਾਮ ਇਸ਼ਾਕ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਬਚਨ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੰਗੀ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ। ਸਰ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁੱਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਨਾਰੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਕਾਫੀ ਆ। बीमारी किन्नी भी पुरानी हो, पर प्रभु यीशु के वचनों से और निश्चित चंगाई पाएगा। पुरानी किन्नी भी बीमारी रोटी किन्नी भी पुरानी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के वचनों द्वारा तुसी चंगाई पाओगे। आमीन हालेलुया। इस तरह मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वां चंगा करन वाले यीशु के बारे असीं सिੱਖਦੇ आ रहे हैं। घट्टो घट्ट असीं 10 इस चमत्कारां बारे पढ़ चुके हैं। बीमारियां अलग अलग कारणों से आती है। जिहड़ी बीमारी आ उहदे अलग अलग कारण हुंदे आ। इस तरह
जदि असी विश्वास करांगे तो हर बीमारी कोई यसू चंगा करेगा। आमीन बोलने वाले के लिए आशीषा। इस तरह मैं तुहानूं दसना चाहुंदा वां कि कदे तुसी कोई कुब्बी बंदे नूं जां औरत नूं वेखिआ? जिहड़े कुब्बे लोग हुंदे आ वो सीधा नहीं खड़ा हो सकते, वो जमीन ते वेखदे, वो साडे चेहरे नूं नहीं वेख सकदे। 18 साल तो एक बुढ़ी इस्त्री बीमार सी, प्रभु ने उन्हें चंगा किया। अज असी इस दे बारे पढ़ांगे। आमीन हालेलुया। साबत के दिन प्रभु यीशु मसीह एक दिन आराधनालयां दे विच, एक दिन चर्च दे विच यीशु मसीह ने एक सुके हत्थ वाले व्यक्ति नूं चंगा किया। ਉਹਦੇ बारे असी पहला पढ़ चुके हाँ। यहूदी लोगों ने ਉਹਦੇ पर किवें दोष लाउण की कोशिश की, ये भी असी वेख्या उस जगह के उत्ते। अज भी असी एक साबत के दिन की घटना के बारे, एक घटना सी प्रभु यीशु मसीह ने एक कुबड़ी औरत 18 वर्ष तो लगातार चर्च दे विच जा रही सी, प्रार्थना करने के लिए आउंदी हुंदी सीगी। वो कुबड़ी होने के कारण करके सीधी नहीं सी चल सकती। बहुत लोग आराधनालय में प्रार्थना करने के लिए आते थे, किसी को भी बूढ़ी पर इस दया नहीं है, किसी ने भी पर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ दया नहीं है। जदों यीशु ने देखा तो उस पर दया आई। यीशु ने उसको देखकर बुलाकर कहा, हे नारी, तू अपनी बला तो सुट गई है। वो तुरंत सिद्धि हो गई। आमीन हालेलुया। इस तरह वो परमेश्वर की कर लगी, स्तुति कर लगी और परमेश्वर की महिमा कर लगी। जदों यीशु ने उन्हें देखा तो उस पर प्रभु यीशु मसीह ने दया की। अज भी प्रभु यीशु मसीह साडे पर भी दया करेगी। आमीन। यीशु ने उन्हें देखकर बुलाया, उन्होंने की क्या, हे नारी, तू इस दुर्बलताई तो कमजोरी तो सुट गई। तुरंत सिद्धि होगी, परमेश्वर की स्तुति करन लगी। चंगियाई तो पहला उन्हें किसी का चेहरा नहीं सी वेख्या, सिर्फ धरती के उत्ते वेखदी सी, केवल जमीन पर देख कर ही चलती थी। अब चंगियाई पाने के कारण वो सबको देखकर आनंदित होने लगी। यह सब होने पर यहूदी लोग खुश नहीं थे, वे यीशु से जलते थे। साबत के दिन यीशु ने उस स्त्री को चंगा किया, इसलिए उन्होंने कहा कि यीशु ने व्यवस्था का की किया, उल्लंघना की है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग साबत के दिन अपने बैल या गधा गौशाले जाकर कदे पानी नहीं पियाते तुसीं? क्या इस पर आनंदित होना जरूरी नहीं? क्योंकि वो 18 साल से शैतान ने इस बुढ़ी को बांध के रखा था। वो ये सुनकर यहूदियों के सिर शर्म दे मारे की हो गए, झुक गए। इस तरह ये शिक्षा मिलती है, दूसरों को जब आशीष मिलती है तब हमें उनके साथ खुश होना चाहिए। जो भी दूसरों को आशीष मिलती है असीं उन्हां दे नाल खुश होना। यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। असी यीशु मसीह के उत्ते की करना वा, भरोसा बनाई रखना वा। आमीन हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ये जगह ते असीं देखते हैं जिहड़ी कुबड़ी स्त्री को यीशु ने कहाँ पर देखा, ये सवाल आ। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री नूं कित्थे वेख्या? प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने एक आराधनालय भवन दे विच, एक मंदिर दे विच, एक चर्च दे विच वेख्या। किन्ने साल तो कुबड़ी स्त्री बीमार थी? घट्टो बाइबल दे विच लिखा वो 18 वर्ष तो, 18 साल तो दुष्ट आत्मा ने उन्हें जकड़िया हुआ सी। कुबड़ी औरत को 18 साल से किसने बांध रखा था? जो तुसीं बाइबल दे विच पढ़ोगे उन्होंने दुष्ट शैतान ने बन के रखा हुआ सी। बोला हालेलुया। यहूदियों के अनुसार साबत के दिन को चंगा करना किस बात का उल्लंघना था? यहूदियों के अनुसार साबत के दिन चंगा करना एक परमेश्वर के वचन का विरोध करना सी। इस तरह इस वचन के विचों असीं सीखते हैं। प्रभु तुहानूं होर भी आशीष देवे। इस वचन तो सानूं की शिक्षा मिलती आ? इस वचन तो सानूं की आग्ञा मिलती आ
कि असी लगातार चर्च जाते रहना। प्रभु तुहानू आशीष देवेगा। इस तरह असी लगातार उस परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। प्रभु तुहानू आशीष देवेगा। आमीन। बोला हालेलुया। इस तरह मैं तुहानू दसना चाहुंदा वां ये पद परमेश्वर के बारे की आखदा। इस चैप्टर के विच असीं परमेश्वर के बारे सीखते हाँ। परमेश्वर हर प्रकार की बीमारी नूं चंगा करने की सामर्थ रखदा। ये औरत झुकी हुई सी, कुब्बी सी, परमेश्वर कुब्बियां नूं भी सिद्धे करने की सामर्थ रखदा। असीं इस औरत के बारे की पढ़ते हैं। जिहड़ी औरत सीगी कुब्बी सी, 18 साल तो दुष्ट आत्मा ने जगड़िया सी, पर परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दे दिता। इस तरह अज दे इस बचन दे विच सानूं की आग्ञा मिलती है। असीं रैगूलर परमेश्वर के पाबंद विच जाना, आराधना दे विच जाना, ते असीं सदा परमेश्वर की स्तुति करनी, परमेश्वर का धन्नवाद करना। प्रभु भी तुहानूं आशीष बरकत देवेगा। इस तरह मैं भी छोटी जी अपनी गवाही दसना चाहुंदा। जदों मैं भी प्रभु तो दूर सी, उस समय मैनूं भी की कीता सीगा, दुष्ट आत्मा ने अपने बस दे विच जकड़िया होया सीगा, एक काबू कीता सी। ते पर परमेश्वर ने जदों प्रभु यीशु मसीह के बारे सुनिया कि परमेश्वर मैनू बहुत ज़्यादा प्यार करदे आ, उन्होंने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दे दिता। जदों मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे जानिया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापां की खातर अपने आप को सलीब ते बलिदान दिता, मारे गए, कब्र च रखे, तीसरे मुर्दे में जी उठे, अज भी वो जीवित है, और सने शरीर स्वर्ग से उठाए गए, फिर दोबारा वापस जल्दी आने वाले ने। मैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के विच बुलाया। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के विच आए तो परमेश्वर ने मैंने दुष्ट आत्मा तो छुटकारा दिता। जो भी शैतान ने मैंने झुकाया सी, परमेश्वर ने मेरे शहर को उच्चा किया। आमीन। अगर मैं यीशु मसीह को ना मिलता तो अज हो सकता मैं बीमारी की हालात के विच ही हुंदा, हो सकता सी अज भी शैतान का मेरे उपर कब्जा हुंदा, हो सकता नशे के कारण करके, किसी लड़ाई झगड़े के कारण करके किसी जेल च हुंदे, हो सकता सी कि अज इस संसार दे विच भी ना हुंदे। ते इस बचन लई मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा। तुसीं भी परमेश्वर के उत्ते विश्वास करो। उही परमेश्वर जो मैनूं प्यार करदा, उही परमेश्वर तुहानूं भी प्यार करदा। उही परमेश्वर जिन्हें इस औरत नूं 18 साल तो जकड़ी हुई सी, उहनूं चंगा कीता, उही परमेश्वर तुहानूं भी चंगा करना चाहुंदा। इन्ने वचन दे प्रभु तुहानूं आशीष दे। आओ सज्जन अपनी अखां बंद करिए, असीं प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर दयालु ते कृपालु, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदा। मैं तुहाडे पवित्र चरनां चाहुंदा, तुहाडी हजूरी नूं महसूस करदा। प्रभु जिन्ने भी इस पवित्र वचन नूं सुणन, प्रभु उन्हां दे घरां दे विचों परमेश्वर शैतान ने जो उन्होंने जकड़ के रखा, उन्होंने जिंदगी जीवन छड्ड के जाए। अज मैं दुष्ट शैतान मैं बंधना हुक्म करदा, सब के घर जिंदगी जीवन छड्ड के चला जाए। प्रभु यीशु के नाम दे विच जो शैतान उन्होंने कमर नूं परमेश्वर मोड़िया होया, अज तो उन्होंने सब दी कमरां सिद्धियां हो जान। प्रभु तुहाडे वल वेखण वाले बन जाण, उन्होंने आत्मिक अखां नूं खुदा तू खोल दे। परमेश्वर जिन्ना समा लगा तुहाडे धर्म खत विच कबूल होवे। परमेश्वर जिन्हें भी जिन्हों के घर भी वचन जाए, खुदावन जो भी इस वचन सुन, उन्होंने घर तो शराब बंधन टुटन, आशीष बरकत मिले। तुहाडी दया, तुहाडी कृपा, तुहाडा अनुग्रह जो मंगया तुसीं कर दिता। तुहाडे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह का नाम लैके मंगदा। हुण यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र संगत, तमाम दासां दासियां नाल, यीशु मसीह के संत सेवकां, प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा लिए संगति हुंदी रहे। आमीन। असीं अपने हाथ उठा के बोलांगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब नूं जय मसीह दी। प्रभु सब नूं आशीष देवे। मैं एक बेनती करना चाहुंदा, इस अध्याय नूं बड़े ध्यान दे नाल पढ़ना। तुसीं ध्यान नाल पढ़ोगे, प्रभु तुहानूं होर भी ब्लैस करेगा, प्रभु तुहानूं होर भी आशीष देवेगा। जिस तरह परमेश्वर ने उस औरत नूं चंगियाई दित्ती, अज वो परमेश्वर तुहानूं भी छुटकारा देवेगा। ओके, जय मसीह दी। गॉड ब्लैस यू।